عام خبر آ رہی ہے کراچی سے، جہاں ملیر کوٹ میں ملزمہ انمول عرف پنکی کی نشاندہی پر منشیات برآمدگی کا کیس ہے، اور اس میں اسپیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت نے ملزمہ کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ لیاقت علی رانا سماجی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت بتائیے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے؟ جی بالکل، جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر جو کہ آج ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے، انہوں نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالت پولیس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، اور متعلقہ تفتیشی افسر کو ڈائریکشن دی ہے کہ بروقت چلان عدالت میں پیش کیا جائے۔ ملزمہ کو آج پہلے صبح ساؤتھ کی جوڈیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، وہاں سے کاروائی مکمل ہونے کے بعد سینٹرل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ سینٹرل کی دونوں عدالتوں سے ابھی تک جسمانی ریمانڈ یا عدالتی ریمانڈ کا کوئی آرڈر نہیں ہوا، لیکن پولیس اس سے پہلے ملیر کورٹ لے گئی، جہاں عدالتی کاروائی کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ ابھی کچھ منٹ پہلے متعلقہ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ ملزمہ کی نشاندہی پر اس کے فلیٹ پر چھاپا مارا گیا، اور وہاں سے کروڑوں روپے کی منشیات اس کی نشاندہی پر برآمد ہوئی ہے، جبکہ ملزمہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ جس فلیٹ پر پولیس چھاپا مارنے کی بات کر رہی ہے وہ 25 سال سے بند تھا، لیکن یہ جھوٹا کیس بنایا گیا۔ عدالت نے وکلا کے دلائل اور تفتیشی افسر کی استدعا سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا لیاقت علی رانا۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کیس میں تفتیشی اداروں نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے منشیات کی ترسیل کے مبینہ طریقہ کار سے متعلق تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزمہ کراچی کی مختلف لوکیشنز پر منشیات رکھواتی تھی، جبکہ رقم موصول ہونے کے بعد مخصوص مقامات پر منشیات ڈیلیور کی جاتی تھی۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلے، اس اہم خبر سے متعلق مزید انکشافات ہوئے ہیں۔ تفتیش میں منشیات فروش انمول عرف پنکی کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ملزمہ منشیات کی ترسیل کیسے کرتی تھی، طریقہ کار سامنے آ گیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق مختلف لوکیشنز پر ملزمہ کی جانب سے منشیات رکھوائی جاتی تھی۔ رقم موصول ہونے کے بعد منشیات لوکیشن پر رکھوائی جاتی تھی، جگہ کی لائیو لوکیشن اور منشیات کی تصویر کسٹمر کو بھیجی جاتی، جبکہ تفتیشی ذرائع کا بتانا ہے کہ ملزمہ کے موبائل فون ڈیٹا کا فورانزک کر لیا گیا ہے، اور ملزمہ کے موبائل فون سے 800 سے زائد نمبرز ملے ہیں۔ اسلم خان سے مزید جانتے ہیں، بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اسلم، آگاہ کیجیے گا، تفتیش میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ لیکن ملزمہ منشیات کی ترسیل کیسے کرتی تھی، یہ طریقہ کار سامنے آیا ہے۔ شہر کی مختلف جو مقامات ہیں اس پر ملزمہ کی جانب سے منشیات رکھوائی جاتی تھی، ایسا کہنا تفتیشی ذرائع کا۔ رقم وصول کرنے کے 10 سے 20 منٹ کے بعد منشیات اس لوکیشن پر رکھوائی جاتی تھی، اور جگہ کی لائیو لوکیشن رکھی جاتی تھی۔ منشیات کی تصاویر کسٹمر کو بھیجی جاتی تھی کہ یہ منشیات اس لوکیشن پہ رکھی ہے، وہاں سے اٹھا لے۔ ملزمہ کے موبائل فون کا جو ڈیٹا ہے وہ فرانزک کرا لیا گیا، اور اس کے موبائل فون سے 800 سے زائد نمبر ملے ہیں، جن میں سے 200 سے زائد افراد کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے۔ بینک اکاؤنٹ اور کراچی میں موجود جو جائیداد ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات حاصل کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمہ ہے اس کو جو ایف آئی اے کو بھی ملزمہ کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جی صحیح، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں منشیات فروش انمول عرف پنکی کی مبینہ رہائش گاہ سے متعلق اہم دستاویزات سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی نواب ٹاؤن کے علاقے میں کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ دستاویزات کے مطابق پنکی نے 5 مرلے کا گھر کرائے پر حاصل کیا۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر، کیا پتہ چل پایا ہے؟ فواد، 300 روپے کے اسٹامپ پیپر پر 11 ماہ کے لیے یہ کرایہ نامہ طے پایا تھا۔ اس کرایہ نامے کے مطابق جو مالک ہیں ان کا نام جہاں زیب اشرف ہے، جبکہ کرایہ دار کا نام طاہر جو ہے وہ ظاہر کیا گیا تھا اس کرایہ نامہ پر، اور اس میں جو مقرر کیا گیا ماہانہ کرایہ وہ 45,000 روپے، جبکہ 90,000 روپے رہائشیوں کی جانب سے سیکیورٹی کے طور پر بھی دیے گئے تھے۔ اس کرایہ نامے کے حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جانچ کی جائے گی کہ اگر انمول پنکی اس گھر میں رہائش پذیر تھی تو کرایہ نامہ جو ہے وہ طاہر نامی شخص کے نام پر کیوں رجسٹرڈ کیا گیا اور کس نے رجسٹر کروایا۔ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ بھی اب تفتیش میں اس کو تفتیش کا حصہ بنا لیا جائے گا، اور اس پر بھی جانچ پڑتال کے بعد مزید تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इसहाक डार की जाती उम्रा में मुलाकात हुई है। एहसन इकबाल भी मुलाकात में मौजूद थे। अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। नायब वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। मजीद जानते हैं अब्बास नकवी से। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा, मुलाकात का क्या अहवाल रहा? जी देखिए, अब से कुछ देर कबल डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा पहुंचे थे और नवाज शरीफ और इसहाक डार के दरमियान मुलाकात जो है जारी है। मुलाकात को तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद हो चुका है। इस मुलाकात में इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आइंदा बजट की तफसीलात से जो तफसीलन जो है आगाह कर रहे हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ ये कह रहा था कि डार साहब, आपको आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है, महंगाई को कंट्रोल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। इसके साथ साथ सालडार के साथ साथ एहसन इकबाल और नून लीग के दीगर वज़रा जो है वो भी जाती उम्रा पहुंच चुके हैं और आइंदा बजट के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने बनाना है उसके हवाले से तफसीली उस पर गौर व किया जा रहा है। जी ठीक है, गौर किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सयाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र की महदूद सहूलियात मुयसर हैं। PIA की यौमिया एक परवाज़ टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए नाकाफ़ी है। रोज़ाना की ज़रूरत कितनी है और क्यों कोई पेशरफ़्त नहीं हो रही, जानते हैं वहाँ मौजूद शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान का टूरिज़म हब कहलाता है। ये इलाका कुदरती मनाजर, ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ के साथ साथ जो है यहाँ पर दरियाओं, नदियों और ख़ूबसूरत पहाड़ों की जन्नत भी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में आना तो चाहते हैं, लेकिन सयाहों की कोशिश होती है कि गिलगित और स्कर्दू के लिए वो जो है वो फ़्लाइट लें या फ़ज़ाई सफ़र जो है वो उनके लिए आसान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ पर सिर्फ दिन में एक फ़्लाइट जो है वो PIA की जानिब से चलाई जा रही है। इसके अलावा कोई जो निजी एयरलाइंस है उनकी जानिब से यहाँ पर फ़्लाइट शेड्यूल नहीं की जाती और ना ही यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 में यहाँ कर जो सेक्रेटरी थे मोयुद्दीन वानी, उनके एक लेटर के ऊपर जो है वो इस हवाले से जो है वो पेशरफ्त की। उन्हें मुतल्लिका हुक्काम का इजलास तलब करके उन्हें ये हिदायत दी थी कि गिलगित के हवाले से फ़्लाइट जो है वो बढ़ाई जाए और एयरलाइन से बातचीत की जाए और उन्हें फैसिलिटेशन दी जाए। लेकिन इतना टाइम गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो यहाँ पर फ़्लाइट शेड्यूल ना तो तय किया जा सका है और ना ही यहाँ पर फ़्लाइट जो है वो बढ़ाई जा सकी हैं। तो यहाँ पर जो पैसेंजर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना रहता है। यहाँ पर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 800 से 1000 पैसेंजर जो है वो डेली फ़िज़ाई सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन एक फ़्लाइट होने की वजह से और उसका शेड्यूल भी जो है वो हफ्ते में 2 से 3 दिन डिस्टर्ब भी रहता है। तो यहाँ पर जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर जो है वो फ़्लाइट्स कनेक्टिविटी दी जाए, क्योंकि ये इलाका टूरिज़म हब है और यहाँ पर टूरिस्ट उसी सूरत में आएंगे जब उन्हें एक अच्छी सफरी सहूलत मुहैया की जाएगी। तो अच्छी सफरी सहूलियत के लिए जो है यहाँ का एयरपोर्ट है उसको भी जो है वो अपग्रेड करना और यहाँ पर जो निजी एयरलाइंस हैं उनको जो है वो यहाँ पर इनवाइट किया जाए, उनकी जो है वो फ्लाइट सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट करवाई जाएं ताकि जो है वो यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और गिलगित बल्तिस्तान की ब्यूटी को देख सकें, इंजॉय कर सकें और ये खित्ता जो है वो माशी तौर पर भी जो है वो ज़्यादा जो है वो मजबूत और मुस्तहकम होगा और यहाँ पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। खूबसूरत मकामात से मालामाल, हर साल लाखों सयाह इलाके का दौरा करते हैं। सयाहती मरकज़ होने के बावजूद खित्ता मसाइल का गढ़ है। कई इलाकों में पानी के टैंकर ही वाहिद सहारा है। घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। तिब्बी सहूलियात की कमी है और जबकि मरीजों को रावलपिंडी, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है स्कर्दू, पाकिस्तान का वो सयाहती शहर जहां कुदरत के हसीन तरीन मनाजिर हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। देवसाई नेशनल पार्क, अपर कचूरा झील, शंग्रीला रिजॉर्ट और सर्द सहरा ने स्कर्दू को आलमी सयाहती नक्शे पर नुमाया कर दिया है। महकमा सयाहत के आदादो शुमार के मुताबिक 2024 में गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाहों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई, जबकि सिर्फ स्कर्दू एयरपोर्ट पर रोजाना मुतादिद परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस होटल इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है और शहर में सैकड़ों छोटे बड़े होटल्स और गेस्ट हाउसेस कायम हो चुके हैं।
लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी सहूलियात की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। तकरीबन 1 लाख से जायद आबादी वाले शहर में पानी की तलब मुसलसल बढ़ रही है। मेरे हिसाब से स्कर्दू शहर में इस वक्त पानी का बहुत बड़ा मसला चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साफ पानी न होने की वजह से मकामी लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी बहुत बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सयाहती सीजन में शहर में गाड़ियों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरकजी बाजार और सयाहती मकामात के अतराफ शदीद रश अब मामूल बन चुका है। रोड बंद होते हैं, किसी नुमाइंदे को कोई एहसास नहीं है। जब रोड बंद होने की वजह से जो है ना स्कर्दू शहर में कहत आते हैं। इस वक्त मंडी में, पूरे बाजार में, शहर में कहीं जो है ना कोई माल जो है ना दुकानों में नहीं है। स्कर्दू में शहरी सहूलियात की कमी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आबादी में इजाफे के बावजूद सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की तौसीह न होने के बराबर रही। बारिशों के दौरान कई इलाकों में सड़कें और गलियां पानी से भर जाती हैं। सेहत के शोबे में पूरे बल्तिस्तान रीजन की बड़ी आबादी का इन्हिसार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दू पर है। बल्तिस्तान डिवीजन की आबादी 5 लाख से जायद होने के बावजूद जदीद अस्पतालों और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तादाद महदूद है। कैंसर, दिल और ट्रामा के मरीजों को अक्सर रावलपिंडी ही मुंतकिल करना पड़ता है, जिस पर मरीजों के अहले खाना लाखों रुपए खर्च करते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्कर्दू में तेजी से बढ़ती हुई तामीरात, होटल इंडस्ट्री और सयाहत के दबाव के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की न होने से मुस्तकबिल में पानी, ट्रैफिक और माहौलियाती मसाइल मजीद संगीन हो सकते हैं। बिजली बहरान ने कारोबार भी शदीद मुतासर किया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और वर्कशॉप्स जनरेटर सिस्टम और सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो रही हैं, जिससे कारोबारी अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। बिजली का तो आप पूछो ही नहीं है। 24 घंटे में कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, इससे ज्यादा बिजली स्कर्दू में देते ही नहीं है। दौरे जदीद में भी यहाँ पर 22 से 23 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लोगों का यहाँ पर जीना महाल हो चुका है। चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर लाइट तक नहीं होती है। इंटरनेट लोग चलाने के लिए बड़े जो है ना वो शौक रखते हैं, लोगों की ज़रूरत भी है, लेकिन बिजली न होने की वजह से यहाँ पर इंटरनेट का हाल भी जो है ना वो बहुत ही बुरा है। कुदरती हुस्न से मालामाल स्कर्दू सयाहत के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर शहरी सहूलियात की कमी सवालिया निशान बन चुकी है। पर वक्त मनसूबाबंदी ना की गई तो पाकिस्तान का ये खूबसूरत सयाहती शहर मुस्तकबिल में बड़े शहरी बहरान का शिकार हो सकता है। आरिफ साहब, समा, स्कर्दू। बर्फपोश पहाड़, नीलगु झीलें और बादलों से बातें करती चोटियां, गिलगित बल्तिस्तान कुदरत का हसीन शाहकार। मसाइल के अंबार के बायस सयाहत को वो फरोग ना मिल सका जो मिलना चाहिए था। टूरिज्म से जुड़े अफराद कहते हैं कि हुकूमत मसाइल के हल पर तवज्जो दे तो यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जो मुझे लगता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब ये डिस्कनेक्ट होता है, ना सिर्फ ये कि आप एज अ टूरिस्ट फैमिली के साथ गए हुए हैं, दोस्तों के साथ हैं, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बल्कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी इससे बड़ा मसला होता है कि वो डिस्कनेक्ट है। दूसरा जो उससे भी बढ़ के है वो ये कि रोड नेटवर्क, अगर आप बाय रोड KKH से जा रहे हैं तो तकरीबन आपको 14 से 16 घंटे बाय रोड लगते हैं स्कर्दू तक पहुँचने के लिए। अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो आप तकरीबन 2 दिन में पहुँचेंगे। उसका अल्टरनेट फ़्लाइट्स हैं। फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन रेशियो भी अच्छी खासी है कि जी आपकी सीज़न पे, पीक टाइम पे फ़्लाइट कैंसिल होती हैं। ये सिर्फ वेदर की वजह से नहीं होती, इसमें ये कि अगर स्कर्दू एयरपोर्ट पे ऑल वेदर लैंडिंग इक्विपमेंट लग जाए तो आपकी रात में भी फ़्लाइटें हों और इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी आना शुरू हो जाएं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जा सकेंगे। साथ ही साथ जब पीक सीज़न आता है, एक फ़्लो होता है, लोग जाते हैं तो वहाँ पे होटल्स एकोमोडेशन कम होने की वजह से ज़ाहिर है उनके रेट्स बढ़ जाते हैं, फिर आपको एकोमोडेशन के मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो दुनिया को हमें इनवाइट करना चाहिए, वहाँ पे बिजली भी नहीं होती।